Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. So now, student, we have discussed about the microorganism. We have started chapter number 4, which is all about the viruses, bacteria and cyanobacteria. In our previous lecture, we have discussed about the viruses, the characteristics of viruses and all these. Today we are going to discuss about bacteria, the another group of microorganism. When we talk about the bacteria, bacteria are found everywhere. They are found in every climate condition. They found in every climate. As the freezing point, एक ऐसा एरिया जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं, और ऐसे इलाके जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हॉट क्लाइमेट के जो इलाके होते हैं, दे आर फाउंड एज वेल एज देयर. नाउ ड्यू टू दिस एबिलिटी दे आर न्यूमरस इन क्वांटिटी, न्यूमरस इन नंबर. ठीक है, सबसे ज़्यादा तादाद इनकी पाई जाती है बैक्टीरिया की, क्योंकि ये हर क्लाइमेट में, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में दे कैन सर्वाइव एंड दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से ये वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, और जब जाहिर सी बात है जब अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट इनकी बॉडी है तो ये वहाँ पे अपनी तादाद में तेज़ी से इजाफा भी करते हैं. नाउ first of all, how can you define the bacteria? Bacteria are the smallest or microorganism. They are strictly unicellular prokaryotes. They are unicellular prokaryotes. Unicellular, uni means single. Their bodies consist of only the single cell. Prokaryotes, as I told you in the chapter number 3 in kingdom Monera or kingdom prokaryotes, the word pro comes from primary, and karyo, the word karyon means nucleus. प्राइमरी न्यूक्लियस, और यू कैन से द अर्ली न्यूक्लियस. जिस तरह बेटा आप स्कूल में आपने देखा होगा प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंडरी सेक्शन, तो सेकेंडरी सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं दे आर मैच्योर्ड एज कंपेयर टू द प्राइमरी स्टूडेंट. बिल्कुल इसी तरह जो प्राइमरी न्यूक्लियस है दे आर अर्ली, दे आर प्रिमिटिव, दे आर इमैच्योर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. They do not have nuclear membrane around their nucleus or genetic material. ठीक है, bacteria are unicellular prokaryotes. They do not have nuclear membrane, or you can say they do not have proper nucleus. First, the scientist who discovered the bacteria was Leeuwenhoek. Leeuwenhoek discovered the bacteria. He told us that they are the smallest primitive creature on the earth, and they are strictly unicellular prokaryotes. Now the characteristics of bacteria. The size of bacteria varies according to their type. And in standard, their size is 0.2 micron to 2 micron in width and 2 to 10 micron in length. Their size, bacterial size. Now the structure of bacterial cell. The structure of bacterial cell, they have cell wall, they have cytoplasm, they have plasma membrane or cell membrane. ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो दे हैव
the outermost boundary is called as cell wall. Their cell wall, chemically their cell wall is completely different from plant cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है? सेल वॉल का. प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, बट इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज प्रेजेंट. केमिकली देयर सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज देयर सेल वॉल डू नॉट कंटेन सेल्यूलोज. ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल सेल्यूलोज एब्सेंट, सेल्यूलोज एब्सेंट. ठीक है, तो जब सेल्यूलोज एब्सेंट है तो सेल वॉल किस चीज से बनी है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, sugar and sometimes chitin. ठीक है, their cell wall is made up of amino acids, sugars and chitin. The next layer is cell membrane or plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बिल्कुल झिल्ली की तरह होती है, जेली लाइक सब्सटेंस है. और दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. ठीक है, सबसे पहले मैं सेल वॉल में एक पॉइंट एक ये भी बता दूं कि ये तो इसकी कॉम्पोजिशन है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, शुगर एंड खाइटिन. व्हाट इट डज. ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिड स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर. कि सेल, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसे उसको मेंटेन करने के लिए सेल वॉल जो है उसका काम है. एंड दिस सेल मेम्ब्रेन, द नेक्स्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ lipids and protein. Lipids and protein. Cell membrane is made up of lipid and protein, and their main function in bacterial cell is the respiration. The main function of cell membrane in the bacterial cell is respiration because they do not contain mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से रिस्पिरेशन का जो काम है बैक्टीरियल सेल में इट इज़ परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा दे आर सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर के जो भी मूवमेंट होती है आउटसाइड और इनसाइड द सेल वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन होती है. एंड सेल मेम्ब्रेन इज selective permeable in nature. Selective permeable in nature. Permeable, परमिट से निकला है. ठीक है, डोर लगा होता है, डोर से क्या होता है, परमिशन मिलती है कि आप अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर कौन सी चीज़ एंटर होनी है, कौन सी चीज़ बाहर जानी है, तो इसके लिए सिलेक्टिव, हर किसी को परमिशन हासिल नहीं है. इट इज सिलेक्टिव इन नेचर. ठीक है, हो सकता है जो यूजफुल कंपाउंड्स हो वो सेल से बाहर निकल जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है, इसको सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर बनाया है कि यूजफुल सब्सटेंसेस सेल से बाहर ना जा सकें और बाहर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल के अंदर ना आ सकें. ठीक है, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने बता दी कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से कुछ जगहों पे दे आर इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, दे आर इन कॉन्टैक्ट. दे कंटेन कंडेंस डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. इसके सराउंडिंग में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती. इसके साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन
दोनों तरफ के सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो एरिया है, इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आपने क्या देखा कि एक कंडेंस डीएनए का पार्ट मौजूद है। इसके अलावा दे कंटेन वैक्यूल्स, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं, एंड दे कंटेन राइबोसोम्स, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये तमाम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो भी है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होते। इसके अलावा सम बैक्टीरिया हैव अ फ्लैजेलम। Some bacteria have flagellum. What is flagellum? Flagellum is the locomotory organ, ठीक है। फ्लैजेलम सिंगल है तो इसलिए फ्लैजेलम, अगर ज़्यादा होते हैं तो फ्लैजिला कहा जाता है, ठीक है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि बैक्टीरियल सेल को मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियल सेल के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक अपेंडिजेस भी मौजूद होते हैं। दीज स्मॉल हेयर लाइक अपेंडिजेस आर कॉल्ड एज पिलाई, ठीक है। इसके अलावा ये था स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरियल सेल हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन स्मॉल राइबोसोम्स, a core of DNA and glycogen particles and small ribosomes. Small ribosomes मौजूद होते हैं। They do not have mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi bodies. Now the types of bacteria according to the shape. Types of bacteria according to the shape. बैक्टीरिया को बेटा डिफरेंट कैटेगरीज की बुनियाद पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर्स की बुनियाद पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। अभी जो हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द शेप बैक्टीरिया, और ये पेपर में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द शेप, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉक्साई। इसको कॉक्साई भी कहा जाता है, इसको खोकाई भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में दे आर कॉल्ड एज कॉक्साई एज वेल एज खोकाई। द सिंगुलर इज कोकस। The singular is coccus. It comes from the Greek word. It comes from the Greek word coccus. It comes from the Greek word coccus, which means berry. Which means berry. और berries का अगर हम शेप देखते हैं तो कैसा होता है? स्फेरिकल, राउंडेड, सर्कुलर, ठीक है। तो जो कॉक्साई बैक्टीरिया है अकॉर्डिंग टू द शेप, वो बैक्टीरिया जो कि सर्कुलर, स्फेरिकल, राउंडेड इन स्ट्रक्चर होंगे, वो किस कैटेगरी में होंगे? कॉक्साई या कोकाई। अब इनकी अरेंजमेंट की बुनियाद पे इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। अगर ये सिंगल है, सॉलिटरी है, सिंगल है, तो उसको सिंगल कॉक्साई या कोकाई कहेंगे। अगर ये डबल है, पेयर की सूरत में है, इट इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई। अगर ये चेन की सूरत में है, ठीक है, अगर ये चेन की सूरत में है, स्ट्रेप्टोकोक्साई, स्ट्रेप्टोकोक्साई। अगर ये बंच की सूरत में है, ग्रेप का आपने देखा होगा, अंगूर का जो एक पूरा बंच होता है, अगर ये बंच की सूरत में है, ठीक है, इस तरह से अगर ये बंच की सूरत में है, देन दे आर कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोक्साई, स्टेफाइलोकोक्साई। The next part, the next type of bacteria is bacilli. The next part is bacilli.
The singular of bacilli is bacillus, and it comes from the Greek word baculus, which means rod. तो आपको शेप समझ में आ गया होगा कि बेसिलाई का शेप कैसा होगा. दे आर रॉड शेप, दे आर रॉड शेप. इस तरह से इसका शेप होगा. दे आर रॉड शेप. रॉड शेप बैक्टीरियम आर कॉल्ड एज बेसिलाई और बेसिलस. द थर्ड वन इज स्पाइरेला. द थर्ड वन इज स्पाइरेला. स्पाइरेला, द वर्ड अगर सिंगुलर होगा तो स्पाइरेलम, एंड स्प्रिंग, इट स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग शेप. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, ये स्प्रिंग शेप होते हैं इस तरह से, कर्व. जिस तरह स्क्रू शेप होता है, स्क्रू में आपने देखा होगा कि स्क्रू में इस तरह से होता है, बिल्कुल ये स्क्रू शेप होते हैं इस तरह से, कर्ल्ड. तो दैट शेप इज कॉल्ड एज स्पाइरेला. दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज स्पाइरेला. नाउ द नेक्स्ट वन इज विब्रियो और कॉमा. विब्रियो और कॉमा, इट इज़ कर्व्ड शेप. बिल्कुल ये आपको मैं अभी पिक्चर्स दिखाऊंगी तो ये बेसिलाई की तरह होते हैं, मगर ये हल्के से कर्व्ड होते हैं. जिस तरह कॉमा शेप होता है कि कर्व हो रहे होते हैं, इसी तरह ये बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, कर्व. ठीक है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज विब्रियो और कॉमा. So now student, the remaining description of bacteria we will discuss in the next part.